Hello everyone and welcome to the class. I hope you all are doing very great. You all are at your home and you all are safe. All those who have not yet installed the Academy and haven't used my code, that is your own code, BREJ10, please do it fast so that you don't miss the opportunity to avail special discount of 10%. Welcome to the class, everyone. Myself, Abhilasha Bareja, your business studies educator at Unacademy. Welcome each and everyone to the class. Let me first introduce myself so that we can proceed further. Myself, Abhilasha, completed my graduation BCom from Delhi University, post-graduation MBA, Finance as a major and Marketing as a minor from IBM College. I have also done B.Ed from MD. I'm having experience of more than 7 years for grades 11th and 12th business studies. Along with that, I also take different subjects like business organizational management, human resource management, and business communication for graduation and post-graduation students. Along with that, I also take a subject of business and commercial knowledge for CA professional students. This was all about me. Now let's talk about the platform, actually where we got the chance to meet each other. That is none other than Unacademy. Unacademy is a place where under a roof we can get the knowledge of any of the subject of our own course which we want. That is, if we talk about class 11, तो 11 में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स है, either from commerce or medical or non-medical और humanities, आप एक ही छत के नीचे अपने सारे सब्जेक्ट्स की कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते। टेलीग्राम के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक व्हाट्सएप। तो यहाँ पर हमारा कॉमर्स 365 का ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट्स इजीली ले सकते। You will be the first one. You will be the first one to get the knowledge, to get the information and get the notification of each of the latest announcements taking place. After downloading the app from, if you are an Android user, you can easily download the app from Google Play or Play Store. Or if you are an Apple user, you can easily download the app from App Store. After downloading the app, you can either choose the subscription of Plus or Icon. There are two types of subscription, Plus and Icon. First, I'll tell you the features of both the subscription, and after that, I'll also help you to decide on which you should go for. Now let's start with the plus. अगर हम प्लस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो अनअकैडमी में हमें प्रोवाइड किया जाता है कि आप घर बैठे इस पेंडेमिक वाले माहौल में भी घर बैठे अपने फोन के जरिए पूरी नॉलेज, पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते। आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपको किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं आना पड़ेगा, आप घर बैठे सेफ होके, सिक्योर होके इजीली पढ़ाई कर सकते। आप जो भी कोर्स पढ़ रहे हैं, इधर 11th, इधर 12th, इधर सीए, कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसमें जितने भी आपके सब्जेक्ट्स कवर है, आप उन सारे कवर सब्जेक्ट्स की कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते। You are in the hands of the top educators of India, so there is no point, there is no doubt कि जो आप पढ़ रहे हैं वो शायद गलत है। You are getting the best out of the bestest education. Regular doubt clearing sessions will be conducted ताकि आपके इकट्ठे डाउट्स क्लियर ना हो, क्योंकि अगर हम थोड़े करके हम मिक्स करते रहेंगे डाउट्स तो हमारा कंफ्यूजन लेवल भी बढ़ता जाए। रेगुलर डाउट्स आपके क्लियर करे जाते हैं ताकि एक टॉपिक के बाद आप डाउट्स पूछे, एक चैप्टर के बाद आप डाउट्स पूछे, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, आपका कोई भी पॉइंट ना रहे जो आपको आगे बढ़ने के लिए आपके लिए हर्डल। कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जो आपका मिस हो। Each and every point, each and every topic, each and every chapter will be covered in detail. Along with getting the complete education, आपको प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर मोटिवेशन भी प्रोवाइड करी जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, जो एक्चुअली में आपकी हेल्प करेगी कि आप अपने टारगेट से हटे। आपके टीचर्स यहाँ पे आपको मोटिवेट करेंगे ताकि आप अपने रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अचीव कर सकें। Proper study materials will be provided to you in PDF formats. आपको PDF formats में study material दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक होएगा, आप उसको डाउनलोड करके नोट्स ले सकते।
एंड इट विल बी वेरी हाईली रिकमेंडेड कि अगर आप उसे फोटोकॉपी करा लें, बिकॉज अगर आप उसे फोटोकॉपी करा लेते हैं तो आप वहां पे छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर भी लिख सकते। रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर यू, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है जिसमें आप चाहते हैं, वीकली, डेली, टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, आप जिस भी पैटर्न में चाहते हैं, ताकि आपको कोई भी पॉइंट, कोई भी ऐसा पैटर्न, कोई भी ऐसा मेथड या पूरा फॉर्मेट ना रहे जिसमें आपको डाउट के चांसेस रहे। लाइव टेस्ट सीरीज विल बी कंडक्टेड फॉर यू, लाइव, बिकॉज आपको हर पैटर्न की नॉलेज होनी चाहिए। आप अगर पेपर देने जा रहे हैं, अगर आप पेपर के लिए बैठ रहे हैं, उससे पहले आप इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि आपका कोई भी स्कोप ना रहे कि आपको कुछ ना आए या आप पेपर के टाइम पे पैनिक। देखा बच्चों, इतने सारे फीचर्स, और आप जरूर शॉक हो जाएंगे सुन के कि दे आर प्रोवाइडिंग सो मेनी फीचर्स एट सो वेरी रीजनेबल प्राइस। सो लेट मी टेल यू, अगर हम 12 मंथ्स यानी कि एक साल की बात करते हैं, तो एक साल के लिए आपको सिर्फ 1250 रुपीज ही फॉर अ मंथ पे कर, जी हाँ, प्रति माह 1250। और अगर हम 2 साल यानी कि 24 महीने की बात करते हैं तो आपको 1042 रुपीज ही फॉर अ मंथ पे कर। इसी के साथ नीचे दिए गए ड्रॉप बॉक्स में अगर आप अपना रेफरल कोड जो कि BREJ10 यूज करोगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाए। बच्चों ये तो थे हमारे प्लस। अब मैं आपको बताती हूँ आइकॉनिक के बारे में। वैसे तो आप सब यही सोच रहे हैं कि प्लस में इतना कुछ आ गया तो आइकॉनिक की जरूरत है, तो मैं आपको बता दूं आइकॉनिक की एक्चुअली में हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि आइकॉनिक हमें इतना इंपॉर्टेंट फीचर प्रोवाइड कर रहा है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। वो है हमारा पर्सनल मेंटर। हमें पर्सनल मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, हमें वन ऑन वन मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा जो हमें पूरी डिटेलिंग देगा, पूरे अच्छे से समझाएगा। जहां पे हम थोड़े सा डर जाते हैं, ये शर्मा जाते हैं, हेजिटेट कर जाते हैं ग्रुप में डाउट पूछने से या अपने फ्रेंड्स के सामने डाउट पूछने से, वहां पे हम फ्री होके अपने वन ऑन वन मेंटर के पास बैठकर इजीली अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इजीली उनको बार बार अगर कोई टॉपिक रिपीट करवाना है या छोटे से छोटा पॉइंट भी है उसके बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस विल बी कंडक्टेड फॉर यू, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि शायद हम ग्रुप में सारे डाउट्स क्लियर नहीं करते, शायद हमें कभी चांस ही नहीं मिलता, ये शायद हम बोलने से हेजिटेट कर जाते हैं। तो यहाँ पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप अपने सारे डाउट्स इजीली क्लियर कर सकते। वीकली रिपोर्ट्स विल बी मेड फॉर यू, ताकि आपको खुद को पता चल सके दैट एट द एंड ऑफ द वीक आपने कितना ज्यादा पॉइंट्स को रिकवर किया, आपने क्या क्या अचीवमेंट्स करी, और इन केस अगर कहीं पे हमारे ड्रॉबैक्स रहते हैं तो हम उन पे फिर से वर्कआउट करके उनको भी क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके मेंटर सिर्फ आपके साथ ही कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, रादर वो आपके पेरेंट्स के साथ भी पूरे कांटेक्ट में रहेंगे, वो आपके पेरेंट्स को भी पूरा गाइड करेंगे, आपके पेरेंट्स को भी आपकी पूरी रिपोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, ताकि आपके पेरेंट्स को भी पता चलता रहे कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं और आप में कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स हो रही, बिकॉज दे आर द ओनली वन हु एक्चुअली मेड यू जॉइन दिस बिग प्लेटफॉर्म, सो दे आर आल्सो रिस्पांसिबल टू नो अबाउट योर अचीवमेंट्स। आपका स्टडी प्लानर बनाने में हेल्प करेंगी, वो प्लानर जो एक्चुअली हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ते हैं लेकिन हम ऐसे नहीं पढ़ सकते जिस तरीके से हमें एक्चुअली पढ़ना चाहिए। हमारा फोकस होता है कि जल्दी जल्दी पढ़ना है, चलो पेपर आ रहा है, फटाफट सिलेबस खत्म करना है, नहीं, हमें पढ़ना चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर कर। तो वहां हमारे मेंटर हमारी हेल्प करते हैं कि हमारा स्टडी प्लानर वो अच्छे से बना सके। ये तो बच्चों हमें सारे फीचर्स मिलेंगे ही आइकॉनिक, इसके साथ जो हमारे प्लस के फीचर्स कवर थे वो सारे फीचर्स भी हो जाए। सो इट्स अ बिग धमाका ऑफर जहां पे हमारे एक्स्ट्रा फीचर्स प्लस all the features of plus total combine the features of Iconic, and you all will be surprised to know about the charges. अगर हम 12 महीने यानी कि एक साल की सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हमें पे करने हैं सिर्फ 2333 रुपीज फॉर अ मंथ, और अगर हम 2 साल यानी कि 24 महीने की बात करें तो हमें सिर्फ 2000 रुपीज फॉर अ मंथ पे।
इसी के साथ नीचे दिए गए ड्रॉप बॉक्स में अगर आप अपना रेफरल कोड जो कि BREJ10 को यूज करोगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाए। तो हमें वेट नहीं करना है, फटाफट जाना है, क्लास खत्म होते ही आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को परचेज करें ताकि हम सारी फैसिलिटीज ले पाए और हमारा कोई भी पॉइंट, कोई भी चांस ना रह जाए हमारे मार्क्स कम। 6 सितंबर 2021 यानी कि आने वाले सोमवार तक के लिए हमारा एक एक्स्ट्रा ऑफर है जिसमें अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं प्लस या आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आप अगर पहले 500 में काउंट किए जाते हैं तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाए। ये ऑफर सीबीएसई क्लासेस 6 to 12 के लिए ही वैलिड है। तो फटाफट जाइए, सब्सक्रिप्शन परचेज करिए और फ्लैट 10% के हकदार ताकि हमारा काम भी हो जाए, चार्जेस भी कम लगे और हम इतने अच्छे अनअकैडमी, इतने अच्छे और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पार्ट। बिजनेस सर्विसेज, आज हमारा लास्ट लेक्चर है अपना बिजनेस सर्विसेज का। पहले मैं आपको फटाफट से वो सारा ब्रश अप करवाऊंगी और उसके बाद हमारा थोड़ा सा टॉपिक ही हेल्थ इंश्योरेंस और मिरर इंश्योरेंस का रह गया है और टेलीकॉम सर्विसेज का जो हम फटाफट से आज कवर करेंगे ताकि हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाए। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। दैट अनाउंसमेंट इज बीइंग टुमारो संडे, तो कल आपका ऑफ। इट्स नॉट अ ऑफ कि आप छुट्टी एंजॉय करें, फन करें, घूमे फिरे, ऐश करें। वो आप कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ वीकेंड, ये आपका हक है। यू ऑल कैन डू दीज थिंग बट along with that what I want from you all is कि आप इसी के साथ प्लीज अपना टाइम निकाल के एक बार इस चैप्टर को रीड कर लीजिएगा ताकि हमारी मंडे को जो एमसीक्यू की क्लास है आप उसमें कोई भी पॉइंट अपना स्किप ना करें। सो इट विल बी अ वेरी ग्रेट एंड हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप एक बार ये चैप्टर पूरा पढ़ लें ताकि आपके सारे पॉइंट, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और हम मंडे को जो हमारा एमसीक्यू की क्लास है उसमें आप थॉरली और एक्साइटिंगली सारे आंसर्स खुद। चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस सर्विसेज वो होती हैं जो हमारे बिजनेस को हेल्प करती हैं एक्टिविटीज को प्रमोट करने। ये हमारी हेल्प करती है ताकि हम अपना बिजनेस बहुत अच्छे से कैरी कर सकें। इसमें आते हैं हमारे वो पांच चीजें होती है हमारी: बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर। बैंकिंग होता है जो हमारी फाइनेंस की प्रॉब्लम को दूर करता है क्योंकि हम सबको पता है कि काम करने के लिए हमें पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर हमें कभी भी पैसे की नीड होती है, फंड्स की नीड होती है, कैपिटल की नीड होती है तो हम इजिली बैंक से जाके ले सकते हैं। इंश्योरेंस, काम करते हुए हमारा रिस्क के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं तो यहाँ पे हम इंश्योरेंस के थ्रू अपने रिस्क को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। देखो बेटा, रिस्क कभी खत्म नहीं होता लेकिन हाँ रिस्क रिड्यूस हो सकता। कम्युनिकेशन, जब हम कम्युनिकेट करके अपने कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स को समझ सकते हैं, उनको गुड प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल करवा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारी हेल्प करता है हमारे रॉ मटेरियल्स को या हमारे फिनिश गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह टाइमली पहुंचा। और लास्ट होता है हमारा वेयर हाउसिंग हमारी हेल्प करता है जब हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि जब हमारा प्रोडक्ट रेडी हुआ है तभी के तभी उसकी कोई डिमांड नहीं, ऐसा हमारा जरूरी नहीं। हमारा प्रोडक्ट बनता है और डिमांड आने के बीच में गैप, उस गैप में हमें अपने प्रोडक्ट को कहीं पे सिक्योर करके रखना होगा। तो वेयर हाउस वहां पे हमारी हेल्प करता है कि हम अपने प्रोडक्ट को सेफली एक ऐसी जगह पे रख सके कि जब उसकी डिमांड आए हम उस प्रोडक्ट को वहां पे देकर अपनी प्रॉब्लम या अपने गुड्स को टाइमली वहां पे पहुंचा सके और उसकी सेल इजीली हो सके। तो 5 सर्विसेज होती हैं हमारी: बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउस। बैंकिंग एक ऐसी जगह होती है जहां पे हम अपना पैसा डिपॉजिट करवा सकते हैं, वो हमारा पैसा सेफ रहता है। हम चाहें तो वहां पे हम अपने इंटरेस्ट फैसिलिटी को भी अवेल कर सकते हैं और साथ ही जब हमें नीड होए तो हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेक्स, विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्ट्स और विद द हेल्प ऑफ एटीएम कार्ड्स। हमारे 5 तरीके के बैंक अकाउंट्स होते हैं:
सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट एंड मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट जैसे कि नाम से हमें पता लग रहा है सेविंग मतलब सेव करना। यहाँ पे हमारी हैबिट होती है कि हम बचाना शुरू करें। ये कमर्शियल बैंक ऑपरेट करते हैं इसको, यहाँ पे हमारे लोगों में ये प्रमोट किया जाता है कि हमें सेविंग करनी चाहिए। तो हम हर मंथ या कभी भी हम अपना अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट करा सकते हैं, जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट रेट भी मिल सकता है। एंड दैट इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम होता है, बट इट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। बेसिकली ये हमें प्रमोट करता है कि हम इजीली यहाँ पे सेविंग कर सकते हैं, और जब भी हमें उसकी नीड हो, पैसे की नीड हो, तो हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने के लिए हम अपने एटीएम कार्ड्स का भी यूज कर सकते हैं और हम अपने चेक्स का भी यूज कर सकते हैं। इन केस अगर हमने कभी अपने क्रेडिटर्स को भी देना है, तो हम विद द हेल्प ऑफ चेक अपने क्रेडिटर्स को भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है कि हम लोगों में हैबिट ऑफ सेविंग डेवलप करवा रहे हैं, प्रमोट करवाते हैं। दूसरा, हम इंटरेस्ट के थ्रू भी थोड़ी बहुत इनकम कर सकते हैं। इंटरेस्ट थोड़ा रेट कम होता है, बट इट में वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। दूसरा, अगर हमें किसी को पेमेंट करनी है तो हम अपने चेक्स के थ्रू पेमेंट भी कर सकते हैं। लास्ट होता है कि यहाँ पे बैंक बहुत और दूसरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स। नेक्स्ट होता है हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बेसिकली हमारा बिजनेसमैन के लिए होता है, जहां पे हम कितनी भी डिपॉजिट्स और कितने भी विड्रॉल्स कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं होती। ये बैंक अकाउंट्स उनके इसलिए खुला जाता है बिजनेसमैन के लिए, ताकि वो अपना बिजनेस बहुत स्मूथली रन कर सके। कई बार हमें क्या होता है, बिजनेस करते हुए हमें पैसों की एक्स्ट्रा नीड पड़ जाती है या अर्जेंट नीड आ जाती है पैसे, तो यहाँ पे हमारे बैंक्स हमारी हेल्प करते हैं, हमें ओवरड्राफ्ट ओडी फैसिलिटी अवेल करते हैं। उस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होता है, हमारे अकाउंट में उतना पैसा जमा हो जाता है। अगर हम किसी को चेक देते हैं, अपने क्रेडिटर्स को कोई चेक देते हैं, तो हम इजीली चेक दे सकते हैं, तो हमारा पैसा ओवरड्राफ्ट के अमाउंट से भी कर सकते हैं। एज एंड व्हेन हमारे अकाउंट में जब दोबारा पेमेंट आती है, तो बैंक ऑटोमेटिकली अपना ओवरड्राफ्ट अमाउंट काट लेता है, एंड द रिमेनिंग बैलेंस विल बी शोन इन आवर बैंक। तो ये स्मूथली फंक्शन रन करने के लिए देता है, जहां पे कोई लिमिट नहीं होती है विड्रॉल्स की या डिपॉजिट्स की। यहाँ पे हम क्रेडिटर्स को चेक्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, बैंक्स भी पैसे कलेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट, हम ओवरड्राफ्ट ओडी फैसिलिटी भी अवेल करवा देते हैं, और ये अकाउंट हमारी हेल्प करता है एक अच्छी गुडविल मार्केट में मेंटेन करने। मार्केट इन द सेंस कि हमारे क्रेडिटर्स और हमारे लेंडर्स को एक अच्छी गुडविल मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, जिसके थ्रू वो हमारे साथ दोबारा बिजनेस करने में इंटरेस्टेड होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा एफडी अकाउंट, जिसको फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है जब हमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो हम एक ह्यूज अमाउंट या एक अच्छा बड़ा अमाउंट एक अकाउंट में डिपॉजिट करा। हम यहाँ पे अमाउंट सिर्फ एक ही बार ही डिपॉजिट करा सकते हैं, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हमारा काफी ज्यादा, एंड दैट इंटरेस्ट रेट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। बैंक टू बैंक को इंटरेस्ट रेट वेरी कर सकते। जब हमें दोबारा अगर कभी सेविंग करनी है फिक्स डिपॉजिट में, तो हमें उसके लिए नया अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। हम सेम अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट नहीं कर सकते। इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है 15 डेज से लेकर 10 ईयर्स। हम कितने भी टाइम की एफडी करवा सकते हैं। अगर हम बीच में अमाउंट नहीं लेते, तो हम मैच्योरिटी पीरियड पे अगर अमाउंट लेते हैं तो हमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम मैच्योरिटी पीरियड से पहले ड्यू टू एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस या एनी ऑफ द रीजन ले लेते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट रेट वहां पे रिड्यूस हो जाता है। इसको टर्म डिपॉजिट अकाउंट या टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी कहा जाता है। यहाँ पे हम लोगों में प्रमोट करते हैं जहाँ पे अच्छा रेट अर्न करना हो, हाई इंटरेस्ट रेट अर्न करना हो। तो दूसरा, यहाँ पे हमें लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाती है। हम चाहें तो इससे बाद में मैच्योरिटी होने के बाद यहाँ पे एसेट्स भी खरीद सकते हैं, और अगर हमें बहुत इमरजेंसी आ गई है तो हमें शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल तक का लोन चाहिए, तो उस एफडी के अगेंस्ट हमें 1 साल का लोन प्रोवाइड कर। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो होता है बार बार जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये हर मंथ के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट को फिक्स कर देता है, जो हमें हर महीने डिपॉजिट कराना जरूरी है। इससे हम अच्छा इंटरेस्ट रेट हायर अर्न कर सकते हैं। इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है 6 मंथ्स टू 10 ईयर्स। ये इसका मैच्योरिटी पीरियड। इन केस अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ती और हमारी मैच्योरिटी होने में भी टाइम, तो
हमें इसके लिए अकाउंट को बंद कराना पड़ेगा, तभी हम उससे पैसा निकाल सकते हैं। और इफ वी वांट टू गो फॉर शॉर्ट टर्म लोन, हम वहां पे शॉर्ट टर्म लोन भी ले सकते हैं। तो ये हमें क्या क्या देता है, जहां पे हम रेगुलर पर मंथ दे सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई जा सकती है, शॉर्ट टर्म लोन मिलते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट हमारी आगे भी किसी प्रॉफिटेबल एरिया में कर सकते हैं। साथ ही हमें यहाँ पे एक पासबुक भी मेंटेन करी जाती है, जिस पासबुक को हमें एवरी मंथ फिल कराना बैंक से जरूरी है, ताकि हमारे और बैंक दोनों के पास रिकॉर्ड रहना चाहिए। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, मल्टीपल मतलब बहुत सारे ऑप्शन। तो यहाँ पे होता है मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, दो बैंक्स, दो अकाउंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। द फर्स्ट वन इज द सेविंग अकाउंट और द अदर वन इज द फिक्स्ड डिपॉजिट। इन दोनों अकाउंट्स की कॉम्बिनेशन को कहते हैं मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट। ठीक है, हमारा एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है, एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है, जिसको हम थ्रेशोल्ड लिमिट कहते हैं, कि उतना पैसा हमारा सेविंग अकाउंट में रखा जाए। अगर वो लिमिट हमारी पूरी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारा पैसा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में चला जाए। इस फैसिलिटी को हम बोलते हैं ऑटो स्वीप फैसिलिटी, कि अपने आप स्वाइप होके वहां जाओ। इसको बोलते हैं ऑटो स्वीप फैसिलिटी। इन केस अगर हमें पैसे की जरूरत है, इन केस अगर अब हमें पैसे की जरूरत है, ध्यान से सुनेंगे सारे। अब हमें अगर पैसे की जरूरत है तो हम निकालेंगे पैसे। अगर हमें पैसा चाहिए, हम पहले निकालेंगे सेविंग में से। ऑब्वियसली पहली प्रायोरिटी सेविंग में से दी जाएगी। अगर उतना अमाउंट हमारे सेविंग अकाउंट में है तो ऑब्वियसली उतना अमाउंट हमारा आ जाएगा, हमें मिल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हमें ज्यादा पैसा चाहिए तो बैंक ऑटोमेटिकली क्या करता है, बैंक ऑटोमेटिकली हमारे एफडी को तोड़ देता है और वहां से हमारा पैसा निकलता है। क्योंकि पैसा आ जाता है तो उसको बोलता है रिवर्स स्वीप फैसिलिटी। रिवर्स स्वीप मतलब कि उल्टा होकर हमारा पैसा निकलता है। क्लियर? तीन चीजें बोली हैं इसमें। थ्रेशोल्ड लिमिट सेट होती है कि हमारा कितना अमाउंट रहेगा। ऑटो स्वीप, जब अमाउंट एक्सीड हो जाता है तो डायरेक्टली एफडी में चला जाता है। रिवर्स स्वीप फैसिलिटी, जब हमारे पास पैसे की जरूरत होती है और पैसा कम होता है सेविंग में, तो अपने आप एफडी से टूट के हमारे सेविंग में आ जाता है। ये 5 ऑप्शन से हमारे टाइप्स ऑफ बैंक। अब हम पढ़ते हैं अपना बैंकिंग से। यहाँ पे बैंक का मेजर फंक्शन होता है बोरिंग और लेंडिंग। किसकी? पैसे। ये काम तो सारे बैंक्स करते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे बैंक कुछ एक्स्ट्रा काम भी करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। अट्रैक्ट इन द सेंस की ताकि उनका कस्टमर लॉन्ग टर्म तक उनके साथ और उनके बैंक के साथ जुड़े। वो फैसिलिटीज क्या होती है? सबसे पहले होती है बैंक ड्राफ्ट फैसिलिटी, जिसको हम डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स ड्राफ्ट भी कहा जाता है। ये आउट ऑफ द स्टेशन भी इशू करी जाती है। इसको इशू करने के लिए बैंक अपने बैंक या अपने बैंक की कोई भी ब्रांच में किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट का कर सकता है इशू। इसके लिए एक रिक्वेजिशन स्लिप हमें प्रोवाइड करी जाती है। वो रिक्वेजिशन स्लिप हमारा कस्टमर फिल करता है ताकि हम इशू कर सके बैंक। ये फुल गारंटी का होता है और इसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं पेमेंट को करने के लिए। देयर इज नो रिस्क ऑफ बैंक ड्राफ्ट टू गेट डिसऑनर्ड। हमारा बैंक ड्राफ्ट डिसऑनर कभी भी नहीं हो। बैंक एक एक्स्ट्रा चार्जेस हमारे लिवाई किए जाते हैं कस्टमर से, जो वेरी करते हैं बैंक टू बैंक। कई बैंक होते हैं कम लेते हैं, कई बैंक होते हैं थोड़े से चार्जेस ज्यादा लेते हैं। इट इज पेएबल ओनली एंड ओनली ऑन डिमांड। डिमांड के ऊपर ही हम इसको पे कर सकते हैं, विदाउट डिमांड इसको पे हम नहीं कर सकते। तो इसको हम क्या कहते हैं? इट इज पेएबल ऑन डिमांड, और इसको कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट और बैंक। सेकेंड आता है हमारा बैंकर्स चेक, जिसको हम पे ऑर्डर भी कहते हैं। ये थोड़ा थोड़ा हमारा बैंक ड्राफ्ट से ही मिलता जुलता होता है, लेकिन इन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि बैंकर्स ड्राफ्ट जो था वो आउट ऑफ स्टेशन भी इशू किया जाता, जो कि मैंने आपको बताया था, लेकिन बैंकर्स चेक इन टाउन मतलब अपने एरिया में, अपने टाउन में ही किया जाता। ये भी पेएबल होता है, मतलब विद इन द टाउन। इसकी भी फुल गारंटी होती है, रिस्की फैक्टर नहीं होता, कोई रिस्क नहीं होता इसके भी डिसऑनर होने। कमीशन इसमें भी चार्ज की जाती है, लेकिन इसकी जो कमीशन होती है वो बैंकर ड्राफ्ट के कंपैरेटिवली थोड़ी कम। बैंकर ड्राफ्ट की जो कमीशन होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन इसकी कमीशन हमारी थोड़ी सी कम। थर्ड होता है हमारा आरटीजीएस, जिसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट।
ये हमारी ऑनलाइन सिस्टम को ट्रांसफरिंग के लिए हेल्प करता है, एक बैंक से दूसरे बैंक के रियल टाइम और ग्रॉस बेसिस पर हमारे ट्रांसफर हो सकते हैं। The first point and very important is it is operated by the RBI bank. It is maintained and operated by the RBI bank and provides the faster transfer among the banks. एक बैंक से दूसरे बैंक में बहुत फास्टर ट्रांसफर कर। सेटलमेंट, इट रेफर्स टू द कंटिन्यूअस ट्रांसफर। हमारे यहाँ पे कंटिन्यूअस ट्रांसफर या कंटिन्यूअस सेटलमेंट ऑफ फंड्स होता रहता है, कभी भी हो सकता है, और इसको ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ 2 घंटे का हमारा टाइम। हमारा जो अमाउंट होएगा, हम अगर दूसरे बैंक को पे कर देंगे, हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिकली कभी के कभी पैसा कट जाएगा। इट माइट बी पॉसिबल कि सामने वाले के अकाउंट में शो होने में, यानी कि सामने वाले का अकाउंट जिसको हम कहते हैं बेनिफिशियरी अकाउंट, बेनिफिशियरी अकाउंट में शो होने के लिए 2 घंटे लग सकते। मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट, 2 लाख हमारा मिनिमम अमाउंट होता है और मैक्सिमम की हमारी कोई लिमिट नहीं। इट मैक्सिमम कैन बी एनी ऑफ द अमाउंट। एसेंशियल इंफॉर्मेशन हमारी क्या क्या जरूरत होती है, हम कितना अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं, हमारा अपना अकाउंट नंबर, हम किसके नाम पे दे रहे हैं, उसका बैंक का नाम, उस कस्टमर का नाम, उसके अकाउंट का नाम, और 11 डिजिट का एक IFSC कोड होता है जो हमें प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट दैट IFSC कोड हमारा कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। टाइम इन्वॉल्व, 2 घंटे के अंदर अंदर हमारा पैसा ट्रांसफर हो जाए। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, एक हमें रिसिप्ट भी RBI की तरफ से मिली जाती है ये बताने के लिए कि हमारा अमाउंट क्रेडिट हो गया। सर्विस चार्जेस, अगर हमारा अमाउंट 2 लाख से 5 लाख के बीच का है, 2 लाख से 5 लाख के बीच की अगर ट्रांजैक्शन है तो हमारे लगेंगे सिर्फ 30 रुपीज, और अगर हमारा अमाउंट 5 लाख से ऊपर का है तो हमारे लगते हैं 55। फिर से बोल रही हूँ, अगर 2 लाख या 5 लाख के बीच का अमाउंट है तो हमारे पैसे लगेंगे सिर्फ 30 रुपीज, और अगर हमारा अमाउंट 5 लाख या 5 लाख से ऊपर का है तो हमारे लगते हैं 55। नेक्स्ट आता है हमारा NEFT, जिसको नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर भी कहा जाता है। ये भी एक ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम ही है जिससे हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक पे, लेकिन ये हम नेट बेसिस पे करते हैं, जबकि RTGS में हम रियल टाइम और क्रॉस बेसिस पे करते थे, नेशनल में हम नेट बेसिस पे। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, नेट सेटलमेंट बेसिस, इट इज ऑन द नेट बेसिस, और ये बहुत डिफरेंट होता है RTGS, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था RTGS होता है हमारा ग्रॉस बेसिस पर और ये होता है हमारा नेट बेसिस। फुल इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड, कंप्लीट डिटेल्स हैज टू बी मेड बिफोर डूइंग द ट्रांसफरिंग। अगर हमें कभी भी ट्रांसफर करनी है उससे पहले हमें पूरी फुल फ्लेज डिटेल्स फिल करना कंपल्सरी। मिनिमम मैक्सिमम लिमिट, हमारी कोई मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ हमें चाहिए होता है 11 डिजिट का IFSC कोड, जिसको हम मेंशन करके इजीली ट्रांसफर कर सकते। टाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ फंड, या तो हमारे फंड सेम डे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, सेम डे हमारे बेनिफिशियरी अकाउंट में शो हो जाएंगे, इफ नॉट तो नेक्स्ट वर्किंग डे या 1 वर्किंग डे के अंदर अंदर वो ट्रांसफर हो जाए। सर्विस चार्जेस, हमारे कोई सर्विस चार्जेस नहीं लगते, और अगर लगते भी हैं तो बहुत मिनिमम लगते हैं। ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, कई बैंक सर्विस चार्जेस नहीं लेते और कई बैंक लेते। ये डिपेंड करता है हमारे रिलेशनशिप के ऊपर भी बैंक के साथ। इन केस वी आर हैविंग अ गुड रिलेशनशिप और हम रेगुलरली ये ट्रांसफर्स करते हैं तो इट माइट बी पॉसिबल कि बैंक से चार्जेस ना। All India coverage, it is available for transfer of funds electronically between more than 18,500 bank branches. 18,500 बैंक ब्रांचेस के अंदर के बीच में हम इसमें ट्रांसफर कर सकते। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर है, सारे पॉइंट इजीली क्लियर हो रहे हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, कल संडे है, कल हमारी छुट्टी है, लेकिन मंडे को हमारी इसकी MCQ की क्लास है। Please don't miss that class. It's a very, very important class so that all your doubts, all your points, all your topics will be cleared in that MCQ question. और आप सबको पता है कि हमारा पूरा MCQ पैटर्न है, तो प्लीज आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए। स्टेप्स, हमारे क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले हमें एक ID बनानी होती है, उसके साथ हमें पासवर्ड सेट करना है। इसके बाद हम फंड ट्रांसफर पे जाएंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे नाम जहां में ट्रांसफर करना है, उसका अकाउंट नंबर, उसका IFSC कोड, हम कितना अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं,
और हम फिर ट्रांसफर नाउ पे क्लिक करेंगे। ट्रांसफर नाउ पे क्लिक करते ही हमारा अमाउंट कट जाएगा और वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट जो भी हमने डिस्कस किया था करंट अकाउंट में, बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होती है बिजनेसमैन को प्रोवाइड की जाती है वेयर दे हैव करंट अकाउंट्स, ताकि वो अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस बहुत स्मूथली रन कर सके। ये एक तरीके का लोन, टेम्परेरी लोन होता है जिसके लिए इंटरेस्ट चार्जेस हमारे या अप्लाई किए जाते जिसके लिए बैंक, जिसके लिए हमारा जो बिजनेसमैन होता है वो रेडी होता है, क्योंकि वो यहाँ पे बैंक फैसिलिटी, हमारे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हेल्प करती है हमारी प्रॉब्लम्स को कट कर, क्योंकि इस पैसे के साथ हम अपनी ट्रांजैक्शन इजीली कर सकते। कैश क्रेडिट, इट रेफर्स टू अ लोन गिवन टू द बोरोवर अगेंस्ट द करंट एसेट। जब कोई बोरो करने आता है तो हम ये लोन दे देते हैं, कैश क्रेडिट करते हैं, उसके लिए उसको अपने एसेट जैसे कि शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, स्टॉक्स में हम मॉर्गेज कराते हैं। द क्रेडिट लिमिट इज सैंक्शन एंड इट विल बी ट्रांसफर टू आवर अकाउंट। क्रेडिट लिमिट हमारी सैंक्शन करी जाती है ताकि वो अमाउंट हमारा वहां पे अकाउंट में शो हो जाए। इंटरेस्ट चार्जेस भी हमारे लगते हैं जो वेरी करता है कि कितना है कितना नहीं। इट इज यूजफुल फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। कई बार हमें डेली के काम करने में पैसे की जरूरत होती है, तो यहाँ पे हम अपने कैश क्रेडिट के अमाउंट को यूज करके अपने डे टू डे वर्किंग कैपिटल्स को रूटीन में ला सकते। ई बैंकिंग जो आजकल हम बहुत यूज कर रहे हैं, नॉर्मल डेज में भी बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है और सब बहुत इजीली इसको यूज कर। तो आजकल आपको पता है डिजिटल पेमेंट्स का जमाना है कि हमें हर कोई काम करने के लिए फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस हो गए हैं। हम इजीली अपने फोन पे, अपने मोबाइल पे, अपने इंटरनेट के थ्रू घर बैठे बैठे सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। पहला होता है हमारा बैंकिंग कार्ड्स। बैंक्स हमें कुछ कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं जो कि दो तरीके के होते हैं। द फर्स्ट वन इज द डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड देते हैं, डेबिट कार्ड होता है उसके लिए हमारे अकाउंट में पैसा होना जरूरी। हम क्या करेंगे, हम इजीली अपना कार्ड स्वाइप करते हैं या अपना एटीएम मशीन में कार्ड डालेंगे, विल यूज द 4 डिजिट या 6 डिजिट पिन नंबर, अमाउंट डालेंगे और ट्रांसफर हो जाएगा। या डेबिट कार्ड हमारी और भी हेल्प करता है, कहीं और ट्रांजैक्शंस करनी हो, किसी की पेमेंट करनी हो, कोई बिल्स पे करने हो, वहां भी हम इनका यूज कर सकते हैं। द ओनली कंडीशन इज कि हमारे अकाउंट में पैसे होने चाहिए। द सेकेंड वन इज द क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड्स होते हैं हमारे जो बैंक हमें प्रोवाइड करते हैं। जब बैंक हमें क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है तो वो हमें एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी देता है कि उसी लिमिट के अंदर रह के हमें सारी ट्रांजैक्शंस करनी। अलॉन्ग विद द लिमिट वो हमें एक टाइम भी प्रोवाइड करता है कि इतने टाइम के अंदर आपको उसकी पेमेंट भी करनी। इट माइट बी पॉसिबल कि वो उसके लिए हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस भी ले। क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम फॉर द टाइम लिमिट फ्रीली शॉपिंग कर सकते हैं, अपने गुड्स या अपनी सर्विसेज को उधार पे, क्रेडिट मतलब उधार पे ले सकते हैं और अपना काम फॉर द टाइम भी चला सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डेटा सर्विस, जहां पे हमें कोई भी मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं होती, विदाउट मोबाइल डेटा, विदाउट रनिंग एन ऐप, तो हम विदाउट डाउनलोडिंग एनी ऑफ द ऐप हम ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जहां पे हम अपने आधार कार्ड को लिंक कर लेते हैं और उसके थ्रू हम अपने इजी ट्रांसफर कर सकते हैं। हम अपने बैंक अकाउंट को भी इसके साथ लिंक कर सकते हैं, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को कर लेते हैं ताकि हमारे सारे के सारे ट्रांजैक्शन इजीली हो जाए। यूपीआई जो आजकल हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं, इसमें भी हमें अपने मोबाइल नंबर और अकाउंट्स को लिंक करना जरूरी होता है ताकि हम एक बैंक से दूसरे बैंक या एक पर्सन से दूसरे पर्सन इजीली पैसा भेज भी सके और हम वहां से पैसा ले भी सके। माइक्रो एटीएम जो कि छोटे छोटे एटीएम्स की तरह होता है, बेसिकली ये रिमोट एरियाज में चला जाता है, जीपीआरएस के थ्रू ही परफॉर्म करता है, जहां पे हमें स्वाइप ऑप्शन, स्वीप ऑप्शन और ये स्वाइप ऑप्शन और थंब इंप्रेशन ऑप्शन के थ्रू में से यूज कर सकते। मोबाइल वॉलेट्स जो हमारे मोबाइल में ही आजकल वॉलेट्स की फैसिलिटी है इन द फॉर्म ऑफ पेटीएम या फ्री चार्जेस, फोन पे, मोबाइल पे, किसी भी हम अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं, मनी भेज सकते हैं, मनी ले सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। भीम यूपीआई या भीम, इसको मैंने बिल्कुल यूपीआई बोल दिया, तो एक कोलैबोरेशन में होता है यूपीआई के साथ ही, जहां पे हम वर्चुअल पेमेंट एड्रेसेस के थ्रू अपनी सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसमें भी हमें अपना बैंक अकाउंट लिंक करना जरूरी।
पॉइंट ऑफ सेल्स हमारा 3 तरीके से किया जाता है। एक होता है फिजिकल, जो कि शॉप्स पर अगर जब हम जाएंगे तो करेंगे। दूसरा होता है मोबाइल, जो हम अपने क्या कहते हैं घर बैठे हुए अपने लैपटॉप से स्मार्टफोन्स के थ्रू कर सकते हैं। और तीसरा होता है वर्चुअल, जो कि हम अपने वेब यानी कि इंटरनेट के थ्रू अपनी पेमेंट्स को प्रोसेस। इंटरनेट बैंकिंग जो हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं, जिसके लिए हमें प्रॉपर एक डेटा या वाईफाई चाहिए होता है, जहां पे हम अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर लेते हैं, डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल डाल लेते हैं, अपने पासवर्ड सेट कर लेते हैं ताकि हमारा सिक्योर रहे, सेफ रहे और हम इजीली ट्रांजैक्शंस कर सकें। इसको हम ऑनलाइन बैंकिंग या वेब बैंकिंग भी कहते हैं। मोबाइल बैंकिंग जो हम मोबाइल के थ्रू करते हैं, जो बेसिकली आजकल हर कोई करता है। हमें कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम हो, हम इजीली अपना काम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, एक मोबाइल डेटा या वाईफाई, और एक हमारा ऐसा हैंडसेट जो एक्चुअली इन सारी सर्विसेज को एक्सेप्ट करे और इन सारी सर्विसेज पे प्रॉपर। अब बैंकिंग हमारे कस्टमर्स को क्या देती है, एक तो हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, हम घर बैठे 24 घंटे या 365 दिन में कभी भी हम ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ये सारी ट्रांजैक्शंस हमारी फेयर होती हैं, क्लियर होती है, ट्रांसपेरेंट होती हैं, जिसमें धोखाधड़ी किसी का कोई रोल नहीं होता। हम इसकी ट्रांजैक्शंस की सारी रिकॉर्डिंग की जाती है, पूरा स्टेटमेंट अगर हमें चाहिए तो हम ईच एंड एवरी स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शन हम ले सकते हैं। बैंक्स को ये क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, बैंक्स के अंदर भीड़ नहीं लगती है, लोग नहीं इकट्ठे होते, लोग डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं करते। बैंक को सिर्फ क्या फायदा देना होता है, उनको बस इंटरनेट बैंकिंग को प्रमोट करना, बस इंटरनेट बैंकिंग उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर पे एक्टिवेट कर। इंश्योरेंस, it is a contract between two parties where one party agrees to cover the losses और दूसरी पार्टी रेडी होती है कुछ अमाउंट पे करने के लिए, जिस अमाउंट को हम प्रीमियम। पार्टी विच प्रोमिसेस टू आइडेंटिफाई द लॉस इज कॉल्ड इंश्योरर या इंश्योरेंस कंपनी। जो पर्सन या कोई सब्जेक्ट या प्रॉपर्टी होता है उसको हम इंश्योर्ड कहते हैं, और हम जो एक एग्रीमेंट में आते हैं उसको हम इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है। अब आप सबको पता है, मैंने कल भी आपको एग्जाम्पल दिया था सिद्धार्थ शुक्ला का, तो हमें कभी भी किसी की लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, तो इट्स बेटर कि अगर हम इंश्योरेंस करा लें। हम अपना रिस्क टोटल खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम अपने रिस्क के चांसेस को थोड़ा बहुत रिड्यूस कर सकते। किसी की लाइफ में, किसी के पर्सन में कभी भी क्या हो जाए क्या ना हो जाए, हमें कुछ नहीं पता। फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं, सबसे पहला होता है प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी। ऑब्वियसली हमारे थोड़े से लॉसेस को, हमें आने वाले कुछ गलत हो रहा है तो उस चीज को हमारा थोड़ा सा रिकवर करने में हेल्प, जहां हमारा लॉस थोड़ा सा रिकवर हो जाए। प्रोटेक्शन, हमें एक सेफ गार्ड, हमें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ताकि हम बहुत सारी चीजों से बचे रहें। हर चीज से हमें तो नहीं बच सकते, पूरा तो अभी भी नहीं बच पाएंगे, लेकिन हाँ फिर भी हमारा प्रोटेक्शन हो जाता है कि आने वाले रिस्क को हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते। रिस्क शेयरिंग, इंश्योरेंस कंपनी हमारी हेल्प करती है कहीं ना कहीं हमारे रिस्क को थोड़ा सा शेयर करने में, वो हमारा रिस्क थोड़ा सा अपने साथ कंट्रीब्यूट कर लेती है ताकि हमारा रिस्क थोड़ा सा रिड्यूस। असिस्टेड कैपिटल फॉर्मेशन, जो हम प्रीमियम या जो अमाउंट हम वहां देते हैं, वहां पे हमारी इंश्योरेंस कंपनी हेल्प करती है, डिफरेंट स्कीम्स को जनरेट करती है ताकि उससे हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग रहे, इकोनॉमी को भी अच्छा कैपिटल मिलना चाहिए ताकि इकोनॉमी में रहने वाले लोग भी स्ट्रांग हो सके। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ऑल्दो इट्स अ सेकंड टाइम कि हमारा रिपीट हो रहा है, बट फिर मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि मंडे को हमारी एमसीक्यू की क्लास है, तो प्लीज आना मत भूलिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स, आपके सारे पॉइंट्स, आपकी सारी टेंशन खत्म हो सके। पहला होता है हमारा अटमोस्ट गुड फेथ, ये कहता है अच्छी भावना को हमेशा हमें ऊपर रखना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस लेने वाले को एक दूसरे को हमेशा सच बोलकर ही सारा काम करना चाहिए, उन्हें एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए, उन्हें गुड फेथ में एग्रीमेंट बनाना चाहिए। गुड फेथ का मतलब होता है अगर हम इंश्योरेंस कंपनी को सारी रूल्स रेगुलेशन, सारे पॉइंट्स क्लियर करने चाहिए, और जो इंश्योरेंस ले रहा है उसको अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर उसको अपनी हेल्थ से लेके कोई इश्यू है या कोई भी दिक्कत है, वो सारी उसको चीजें अपने इंश्योरेंस कंपनी को क्लियर कर देनी चाहिए ताकि कल को उसको क्लेम लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल है राम, हम एक ही पर्सन का नाम यूज करेंगे राम का, और सारे एग्जाम्पल्स में वही यूज। राम एक पर्सन है, उसको स्मोकिंग की बहुत हैबिट,
वो बहुत एक्सेस ऑफ स्मोकिंग करता है जिसकी वजह से उसके लंग्स डैमेज हो जाते हैं। जब वो इंश्योरेंस कंपनी के पास अपना लेने जाता है, क्लेम करने जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको मना कर देती है। वो कहती है यू डिडंट एवर टोल्ड कि आपको स्मोकिंग की हैबिट है जिसकी वजह से आपको लंग्स की प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पर इंश्योरेंस लेने वाले ने अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई, उसने अपनी प्रॉब्लम छुपाई, तो आगे इंश्योरेंस कंपनी ने उसको डिनाई। तो अटमोस्ट गुड फेथ कहता है हमें अपने सारे पॉइंट्स क्लियर कर कर ही चलना चाहिए। सेकेंड होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योर्ड के पास सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंगली इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, अगर किसी इंसान की लाइफ में उसके स्पाउस है और डिपेंडेंट इंश्योरेबल इंटरेस्ट वही माना जाए। और अगर वो कॉर्पोरेट से रिलेटेड है, कॉर्पोरेशन में काम करता है, तो कॉर्पोरेट ही उसकी इंश्योरेबल इंटरेस्ट मानी जाए। नेक्स्ट आता है हमारा इंडेमनिटी। इंडेमनिटी कहता है कि इंश्योरेंस कभी भी इंश्योर्ड जो होता है, इंश्योर्ड पर्सन होता है, वो कभी भी इंश्योरेंस कंपनी का फायदा नहीं उठा सकता। उसको जितना नुकसान हुआ उसको उतने ही नुकसान का फायदा मिलेगा। अगर वो सोचे कि मेरे को पूरा प्रॉफिट मिल जाए या मुझे एक्स्ट्रा फायदा मिल जाए, तो उसको वो एक्स्ट्रा फायदा कभी भी नहीं मिल सकता। एग्जाम्पल, एक पर्सन ने राम ने एक फायर इंश्योरेंस लिया था 1.5 लाख। उसके घर में आग लग जाती। जब उसके घर में आग लग गई तो उसको आग के नुकसान से 1 लाख रुपए का नुकसान। उसको 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ, उसकी इंश्योरेंस थी हमारी 1.5 लाख की। अगर वो कंपनी से अब क्या एक्सपेक्ट करेगा कि कंपनी उसको 1.5 लाख का देगी? नहीं, उसको नुकसान कितने का हुआ है? 1 लाख। तो कंपनी उतनी ही भरपाई करेगी जितने का उसको नुकसान। कंपनी एक्स्ट्रा की या कंपनी कम की भरपाई नहीं। प्रॉक्सिमेट क्लॉज कहते हैं कि हम नियरेस्ट कॉज को कवर कर कर ही उस पर दें। नियरेस्ट कॉज होता है कि माइट बी, कॉज होने के 2 या 2 से ज्यादा रीजंस हो सकते हैं, तो उन दोनों में से जो नियरेस्ट कॉज होता है वो एक सिलेक्ट किया जाता है जिसके बेसिस पर हम उनको क्लेम दे सकते हैं। एग्जाम्पल, राम कार चला रहा था और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट। गाड़ी का एक्सीडेंट होने के 2 रीजन सामने आए। द फर्स्ट वन कैन बी द ड्राइवर वॉज ड्रंक। ड्राइवर ने ड्रिंक कर रखी थी जिसकी वजह से ही वॉज नॉट इन द सेंस और उसने एक्सीडेंट कर दिया। एंड द अदर पॉइंट वॉज कि कार की ब्रेक्स फेल हो गई थी जिसकी वजह से हमारा एक्सीडेंट हो। तो हमने ये माना इन दोनों में नियरेस्ट कॉज हमने लिया कि कार की ब्रेक्स फेल हो गई, तो हमें क्लेम मिलेगा कार की ब्रेक्स फेल होने के ऊपर, ना कि उसके ड्रिंक करने की वजह। हम सिर्फ एक कॉज को ही कंसिडर करेंगे जो कि कहलाता है हमारा नियरेस्ट कॉज। नेक्स्ट होता है हमारा सब्रोगेशन। अगर इंश्योर्ड किसी चीज के लॉस पे मनी क्लेम कर लेता है, अगर इंश्योर्ड किसी भी चीज के लॉस पर मनी क्लेम कर लेता है, तो इंश्योरेंस द्वारा उस वस्तु का पूरा अधिकार हो जाता है। एग्जाम्पल, इंश्योरेंस द्वारा मतलब इंश्योरेंस कंपनी। सपोज अगर राम की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, राम वही पर्सन जो हम फर्स्ट डे यूज करते हैं, इन केस अगर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी गाड़ी को फुल डैमेज हो जाता है, उसकी गाड़ी का फुल डैमेज हो जाता है, उसने अपना इंश्योरेंस लिया होता है, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी उसके फुल डैमेज के पैसे उसको दे देगी। अगर वो चाहे कि मेरे को यहाँ से तो मिल गया, नुकसान हो गया मेरा जो बच गया, पैसे मिल गए, अगर वो चाहे कि वो अपनी गाड़ी को स्क्रैप में बेच दे, तो लीगली वो चीज गलत। क्यों? क्योंकि वो एक ही चीज के डबल डबल जगह से फायदे, तो उसको ये काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब मिल्क। ये कहते हैं अगर किसी इंसान ने एक चीज के लिए एक या एक से ज्यादा पॉलिसी ली होती है, वो भी 2-2 या 3-3 कंपनी से, क्यों लेता है? वो जब वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए ये काम करता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको दोनों जगह से ही क्लेम्स मिल जाए। एग्जाम्पल, राम ने 5 लाख रुपए की उसकी प्रॉपर्टी, उसे कंपनी ए कंपनी बी दोनों से ही अपनी पॉलिसीज लेते। एग्जाम्पल, 5 लाख की उसकी प्रॉपर्टी थी, उसने कंपनी ए से 3 लाख का क्लेम लिया हुआ था, कंपनी बी से 2 लाख का क्लेम। एक्सीडेंट होने की वजह से क्या होता है? उसको 3 लाख का नुकसान हो जाता। कंपनी ए क्लेम करने को रेडी है, लेकिन कंपनी बी कंपनसेट नहीं कर, तो अब कंपनी ए ने कंपनी बी को कहा कि क्योंकि आपसे भी लिया हुआ है, कि मेरे से भी लिया हुआ,
तो हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पर इसको क्लेम करेंगे, यानी कि हम कंट्रीब्यूट कर कर इसको क्लेम कर। नेक्स्ट होता है मिटिगेशन। ये कहते हैं रीजनेबल स्टेप्स शुड बी टेकन ताकि हम अपने लॉस को मिनिमाइज कर कर चल सकें। अब मैं आपको बताती हूँ रीजनेबल स्टेप्स क्या। इन केस वही राम के घर में सिलेंडर है तो आग लगी। अब आग लगने की वजह से क्या होता है, आग लगने की वजह से राम को नुकसान हो जाता है, सिलेंडर हमारा फट जाता है तो हमें नुकसान हो जाता है, तो जिस वजह से राम को लॉस हो जाता है। अब क्या होता है, अगर वो चाहे कि पूरा लॉस हो जाए और मैं मैक्सिमम कवर करूं तो वो गलत है। उसको टाइम लेके क्या करना चाहिए, उसको टाइम लेते ही फटाफट से अपना फायर ब्रिगेड को फोन करना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए और उस आग को बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारा कोई रिस्क ना रहे, हमारा जो रिस्क जो हुआ है, जो हमारा लॉस है वो मिनिमाइज हो सके, कम हो सके, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल कंप्लीट लॉस ना हो सके। ये थे हमारे सारे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इसके बाद आती है हमारी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। फर्स्ट वन इज द लाइफ इंश्योरेंस और इसके बाद आता है जनरल इंश्योरेंस, जिसमें हमारा कवर होएगा फायर, मरीन, हेल्थ एंड अदर इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस वही लाइफ का होता है कि हेल्थ हमारी नहीं पता कब कुछ भी हो जाए, क्या हो जाए, हम ज्यादा जिए जल्दी मर जाए, क्या पॉसिबल है, कुछ नहीं। तो हमें अपनी डेथ को सिक्योर करने के लिए, अपने ओल्ड एज को सिक्योर करने के लिए हमें कुछ इंश्योरेंस वगैरह ले लेनी चाहिए, ताकि हमारे आने वाले टाइम में हमें कोई प्रॉब्लम्स ना फेस करनी। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या होती हैं। सबसे पहला होता है हमारी होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी होता है कि हम अपना 20 या 30 साल तक अपना प्रीमियम पे करते रहेंगे और इन केस अगर हमारी डेथ हो जाती है या अगर हमारा कोई टाइम पीरियड फिक्स होता है उस टाइम पर हमें पैसा मिल जाए। एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें क्या होता है हम एक टाइम तक लमसम अमाउंट देते रहते हैं और जब हमारी डेथ होती है तो हमारी या एक स्पेसिफिक टाइम होता है तब तक हम पे करते हैं और उसके बाद हमारी फैमिली को एक लिमिटेड टाइम के बाद हमें पैसा मिल जाए। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जहां पे हम हस्बैंड वाइफ या कोई भी दो पार्टनर्स आपस में मिलकर कराते हैं। प्रीमियम जो होता है वो जॉइंटली पे करते हैं या हम इंस्टॉलमेंट्स में या लमसम में भी पे कर सकते हैं। यूजुअली जो होती है ये हस्बैंड वाइफ ही कराते हैं। अगर इन केस कुछ हो जाता है, एक की डेथ हो जाती है तो दूसरे पर्सन को वो पैसा मिल जाता है ताकि उसकी सर्वाइवल चले। एन्युटी पॉलिसी, एन्युटी पॉलिसी बेसिकली होती है हमारी रिटायरमेंट पॉलिसी। ये एक लिमिट टाइम तक के लिए हम पैसा यहाँ पे पे करते हैं, वो हम मंथली भी दे सकते हैं या एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं, हम कैसे भी दे सकते हैं। एक सर्टेन एज तक हम यहाँ पे पैसा देते हैं ये सोच के कि जब हम रिटायर हो जाएंगे, जब हमारे पास कोई काम नहीं रहेगा तो यहाँ से हमारा ऐसा रिटायरमेंट का मनी आता है। चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी, जो हम बच्चों के लिए करवाते हैं, जिसको जीवन अनुराग पॉलिसी भी कहा जाता है, जैसे जहां पे हम बच्चों की शादी का या बच्चों की पढ़ाई की पॉलिसीज कवर करते हैं, ताकि एक पर्टिकुलर एज आने के बाद जब हमें एक्चुअली में पैसे की जरूरत है तो हम यहाँ से पैसा निकाल कर इजी उनका काम आगे कर सकते। यहाँ तक का तो था जो हमने पहले पढ़। अब हम पढ़ेंगे अपना अब। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। हमारा बहुत थोड़ा सा ही रह गया, हार्डली इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स हमारा खत्म हो जाएगा। सो प्लीज अगर अभी तक अभी आप अटेंटिव नहीं थे तो अब थोड़े से अटेंटिव हो जाओ ताकि आप अच्छे से सुन सकें। और मैं आपको एक और बात बता दूं, फिर से बोल रही हूँ, कल संडे है, कल छुट्टी है, लेकिन परसों की क्लास में आना बिल्कुल मत भूलिएगा। परसों की क्लास में हम अपना एमसीक्यूज कवर करेंगे, सो इट वुड बी वेरी बेटर एंड गुड कि अगर आप टाइमली आ जाए और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर। नेक्स्ट होता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस होता है जब हम अपनी हेल्थ के लिए कराते हैं, हमें अपनी हेल्थ के बारे में कुछ नहीं पता। टाइप ऑफ इंश्योरेंस दैट कवर्स मेडिकल एक्सपेंसेस, जहां पे हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होते हैं, दैट अराइज ड्यू टू एनी ऑफ द इलनेस। जब हमें किसी बीमारी की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम अपने यहाँ पे एक्सपेंसेस कवर कर सकते। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या रीजन थे इसके ओरिजिन को। जब 80s की बात है, जब हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते थे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं थे, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या था, हमारी लोग बहुत बीमार होते थे और यहाँ पे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करी जाती थी, या होती थी तो बहुत महंगी होती थी जिसको लोग नहीं ले सकते। तो यहाँ पे एक्चुअली में हमारा हेल्थ इंश्योरेंस निकला था ताकि सारे इस चीज को ले सके और सारे इस चीज का बेनिफिट भी उठा सके। नेचर ऑफ प्रोटेक्शन,
इसका नेचर क्या था कि ये हमारे सारे रिस्क को कवर करता था, हमारे एक्सपेंडिचर को पे करता था, जो भी हमारे हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज होते थे उन सारी मेडिकल कॉस्ट पे पे करने में हेल्प। प्रीमियम, हमारी जितनी भी जो भी पॉलिसी होती थी उसके बेसिस पर अगर हम चाहें तो अपना लमसम अमाउंट भी प्रीमियम का पे कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम इंस्टॉलमेंट्स में भी, इजी इंस्टॉलमेंट्स में भी अपना अमाउंट पे कर सकते हैं। इट डिपेंड्स टोटली ऑन आवर चॉइस। 3 तरीके की होती हैं। सबसे पहला होता है हमारा इंडिविजुअल मेडिक्लेम, जो हम अपने सिंगल पर्सन का करवाते हैं ताकि हम अपने इंडिविजुअल के हॉस्पिटल के खर्चे भर सकें। दूसरा होता है फैमिली फ्लोटर पॉलिसी, जिसमें हमारी पूरी फैमिली कवर होती है ताकि गॉड फॉरबिड कभी भी हमें जरूरत पड़े तो पूरी फैमिली का वहां पे खर्चा कवर किया जाए। नेक्स्ट होती है यूनिट लिंक हेल्थ प्लान, जिसको यूलिप भी कहा जाता है। ये पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन होती है जहां पे हम इन्वेस्टमेंट के थ्रू पे करते हैं और जब हमारा पूरा अमाउंट हो जाता है तो हमें वापस मिल जाता है। 2 तरीके से हम अपना इंश्योरेंस क्लेम ले सकते हैं। द वन इज द कैशलेस। कैशलेस होता है कि हमारे कोई प्रॉब्लम हो गई है, हम हॉस्पिटल गए हैं, हमने हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाया है, हमने टीपीए, टीपीए होता है हमारा थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, जो बीच का काम करती है एक हॉस्पिटल के और इंश्योर्ड पर्सन के बीच का काम। तो हम वहां जाके टीपीए से अप्रूवल लेकर विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी हॉस्पिटल को हम अपना इजी ट्रीटमेंट करवा सकते। नेक्स्ट होता है रीइम्बर्स, जहां पे हम पहले अपने पैसे दे देते हैं, अपना ट्रीटमेंट ले लेते हैं, अपने पैसे भर देते हैं, बिल्स पे कर देते हैं, लेकिन बाद से जब टीपीए से हमारा अप्रूवल आ जाता है तो वहां पे हम अपने सारे बिल्स लगा के अपने पैसे रीइम्बर्स करवा लेते हैं, यानी कि वापस पैसे करवा। नेक्स्ट आता है हमारा फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस जैसे कि आप नाम से ही सुन रहे हैं, फायर मतलब कि आग, जहां पे ये आग की वजह से किया जाता है। एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट, मेरा ना फोन गिर गया है, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत थोड़ा सा ही रह गया, प्लीज। आई एम सो सॉरी, मेरा फोन गिर गया था, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी। लेट्स कंटिन्यू विद इट। नेक्स्ट होता है हमारा फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस होता है जो हमारा पैसे की होता है, नो सॉरी, फायर, आग लगने की वजह से हमारा कोई नुकसान होता है तो उसकी हमें भरपाई कर सकते। फायर इंश्योरेंस में हमारा प्रॉपर्टी डैमेज तो पूरा कवर होता है, लेकिन हीट या स्मोक से होने वाला, हीट या स्मोक यानी कि हल्की सी आग या चिंगारी से होने वाला या धुएं से होने वाला नुकसान इसमें कवर नहीं किया जा सकता। हम चाहें तो अपना प्रीमियम यहाँ पर भी लमसम या इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं, और जैसे ही हमारा जो हमारी चॉइस होती है, इंस्टॉलमेंट्स पे करना चाहे तो इंस्टॉलमेंट्स में कर सकते हैं, अगर हम लमसम अमाउंट पे करना चाहें तो हम लमसम अमाउंट पे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट बोथ द टाइम ऑफ इंश्योरेंस एट द टाइम ऑफ लॉस। जो हमारा होता है विद इंश्योरेबल इंटरेस्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज वॉइड, हमारा निल माना जाता है, नल एंड वॉइड हो जाता है, बिल्कुल खत्म। एट मोस्ट गुड फेथ, हमें बिल्कुल सच बोलना चाहिए, हमें बिल्कुल ट्रू फैक्ट्स ही देने चाहिए, हमें झूठ का कोई भी यहाँ पे साधन नहीं यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी। इंडेमनिटी होता है जितना हमें लॉस हुआ होता है हमें सिर्फ उतने की ही भरपाई करनी चाहिए। अगर हम चाहें कि हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए एक्स्ट्रा भरपाई कर लें तो वो चीज हमारे लिए गलत है, वो काम हमें नहीं करना चाहिए। इट मस्ट बी प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ डैमेज और लॉस, जो कि नियरेस्ट कॉज माना जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आग लगने के कारण 2 या 3 या 4 या 5 भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी नियरेस्ट लॉस होएगा हम उसी नियरेस्ट लॉस को ही कंसिडर करके उसी के बेसिस पर ही क्लेम प्रोवाइड। नेक्स्ट आता है हमारा मेराइन इंश्योरेंस। मेराइन इंश्योरेंस होता है जो कि पानी में हो सकता है। इसमें हम 3 चीजें हमारी कवर की जाती है, शिप,
कार्गो और फ्रेट। शिप होता है जहाज, कार्गो होता है जहां से हमारा सामान होता है, टाइप ऑफ जहाज ही कह सकते हैं। फ्रेट जब हमारा जो किराया लगता है वो किराया हमारा कोई नहीं दे। ये तीनों चीजें हमारी इसमें मेराइन इंश्योरेंस में कवर करी जाए। तो टाइप्स ऑफ मेराइन इंश्योरेंस हमारे तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है शिप और हल इंश्योरेंस। ये होता है जिसमें हमारी शिप की कवर होती है, अगर शिप को कोई डेंजर होता है तो उसको कहलाते हैं हल इंश्योरेंस, तो उसका हमें पूरा डैमेज हमें मिला जाए। नेक्स्ट होता है कार्गो, जो कि पूरी कार्गो होती है। अगर कार्गो पूरे कोई लॉस हो जाता है अपनी जर्नी में, कार्गो खो जाती है या उसकी चोरी हो जाती है या उसके गुड्स खराब हो जाते हैं, तो पूरी कार्गो का इंश्योरेंस मिलेगा। थर्ड होता है फ्रेट इंश्योरेंस, जो कि किराए के ऊपर होता है। अगर कोई हमारा किराया नहीं देता या नॉन रिकवरी ऑफ फ्रेट हमारा कंसिडर किया जाता है तो वहां पे हमारा लॉस हो जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया मेरीन इंश्योरेंस में हमारे तीनों चीजें कवर की जाती हैं, शिप, कार्गो और फ्रेट। इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये भी पहला बेस्ड होता है इंडेमनिटी के ऊपर। ये कहता है जितना नुकसान हमें हुआ होता है एक्चुअली में उतने नुकसान की हमारी भरपाई। हम चाहें तो अगर प्रॉफिट कमाने के लिए एक्स्ट्रा नुकसान दिखा दें या उसकी भरपाई कर लें तो ये चीज गलत। इट इज बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ। हमें सच बोलकर ही अपना काम करना है। सच बोलेंगे, सच फैक्ट्स अपने क्लियर आउट करेंगे तो हम एक लॉन्ग टर्म तक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट में रह सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक हमारी डीलिंग हो सकती है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस। लॉस होएगा तभी होएगा, तभी पॉलिसी को एक्चुअली में कंसिडर किया जाए। कॉज प्रॉक्सिमा, प्रॉक्सिमिटी वाली पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, जहां पे जो नियरेस्ट कॉज होएगा, नियरेस्ट नुकसान का चांस होएगा, उसी नियरेस्ट नुकसान को ही हमारा कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी नुकसान को कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब हम एक बार इनके डिफरेंस पढ़ लेते हैं ताकि हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो। सब्जेक्ट मैटर, लाइफ इंश्योरेंस किसके ऊपर है? इंसान की लाइफ। फायर, आग लगने पर किसी भी प्रॉपर्टी की। मेरीन इंश्योरेंस, शिप, कार्गो, फ्रेट, तीनों का। एलिमेंट या एम, लाइफ इंश्योरेंस का एम क्या होता है कि हम पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। फायर इंश्योरेंस में हम कवर कर रहे हैं वो चीजें जो कि सिर्फ प्रॉपर आग लगने की वजह से, स्मोक या हीट की वजह से कवरेज कवर नहीं। और मेराइन इंश्योरेंस में हम सबको कवर कर रहे हैं जो भी हमारे प्रोटेक्शन में यूज करते हैं। एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग द पॉलिसी। पॉलिसी होती है तो ही वहां पे होएगा। फायर इंश्योरेंस, it must exit at the time of contract or whichever comes falls due to. Marine insurance present at the time when claim falls. जब क्लेम होएगा तब वहां प्रेजेंट होना। ड्यूरेशन, लाइफ इंश्योरेंस का ड्यूरेशन क्या होता है? 5 to 30 ईयर्स या होल लाइफ। और फायर इंश्योरेंस का होता है 1 साल और मेरीन इंश्योरेंस का होता है 1 साल। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी क्या होता है कि जितना हमें लॉस हुआ होता है हमें उतना ही कवरेज मिलता है। ये तीनों में भी यही चीज ही हमारी कवर करी जाए। लॉस मेजरमेंट, लाइफ में हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इंसान ही चला गया तो उसको क्या मेजर करें। फायर में इसमें भी मेजर कर सकते हैं कि कितनी चीजों का हमें लॉस हुआ है, घर जला है या कोई पर्टिकुलर चीजें जली हैं, हम कर सकते हैं। और मेरीन इंश्योरेंस में भी हम लॉस मेजर कर सकते हैं कि हमारा कितना सामान आ रहा था और हमारा कितना सामान उसमें से चोरी। सरेंडर वैल्यू ऑफ पेड अप वैल्यू, सरेंडर वैल्यू ऑफ पेड अप वैल्यू हमारी क्या होती है? मेच्योरिटी पीरियड होता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस में। और अगर हम फायर इंश्योरेंस की बात करें उसकी कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होती है क्योंकि वो सरेंडर नहीं किया जाता। सेम मेराइन में भी क्योंकि उसकी भी सरेंडर वैल्यू नहीं होती, उसे भी सरेंडर नहीं किया जाता। पॉलिसी अमाउंट, लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी अमाउंट कैन बी टेकन फॉर एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट ले सकते हैं। फायर इंश्योरेंस में जो हमारा सब्जेक्ट मैटर का लॉस होता है वही, एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हम। और उसमें भी जो सब्जेक्ट मैटर का हमारा लॉस हुआ था उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है हम सिर्फ उसी का ही लॉस ले सकते हैं, एक्स्ट्रा का लॉस नहीं ले सकते। कंटिजेंसी ऑफ रिस्क, रिस्क हमारा पूरा होता है क्या कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस में रिस्क है, डेथ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फायर इंश्योरेंस में अनसर्टेन होता है हमारा रिस्क, हमें नहीं पता होता, कभी भी कैसे भी लग सकता है, हमें नहीं पता। और मेरीन इंश्योरेंस में भी हमारा अनसर्टेन होता है, कुछ चोरी हो जाए या कोई हमारा जानबूझ के सामान चुरा के ले जाए, हमें पता नहीं।
अगर और तरीके के हमारे क्या रिस्क होते हैं, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, अगर हमारी गाड़ी वाड़ी चोरी हो जाती है या उसका हमें कोई डैमेज हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो वो हम कवर कर सकते हैं। बल्गेरी इंश्योरेंस, ये हमारा किया जाता है हाउस ब्रेकिंग या कोई थेफ्ट हो रहा है या घर के अंदर कोई चोरी हो रही है वहां पे, यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट प्रॉक्सिमा अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा केटल इंश्योरेंस, जो कि हमारी एनिमल्स, काउ, बफलोस, इन सब के लिए यूज किया जाता है। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हम वहां से सिक्योर कर सकते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस, हमारी फसल, हमारे फार्मर्स के लिए अगर की बाढ़ बाढ़ आ जाती है, बहुत नुकसान हो जाता है, तो हम वहां से हम कवर कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इंश्योरेंस, ये प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन के लिए नहीं होता, उनके लिए होता है जो कि नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जिन्हें कोई इक्विपमेंट्स खरीदने हो या कोई उनके साथ कोई पर्सनल एक्सीडेंट। ऑल्दो आपको ये सारे पॉइंट सुनने में थोड़े मजाकिया टाइप के लग रहे हैं कि क्रॉप इंश्योरेंस या कैटल इंश्योरेंस कौन करवाता होगा, एक्चुअली जिसके जो जो बिजनेस होते हैं वो इंश्योरेंस जरूर करवाते हैं, क्योंकि हर कोई अपने साथ एक प्रोटेक्शन पॉइंट लेकर चलता है, हर कोई अपने आप को कहीं ना कहीं सिक्योर करके चलना जरूर समझता है। वो चाहता है कि मुझे कहीं भी लॉस नहीं होना चाहिए, कहीं भी मेरे को पॉइंट ऑफ रिस्क नहीं होना चाहिए, भले ही वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, प्रोफेशनल ना हो, क्योंकि प्रोफेशनल के साथ तो बहुत कुछ जुड़ा हो। क्रॉप हो, फार्मर्स हो, अब फार्मर है तो उसके लिए तो सिर्फ क्रॉप से उसकी जिंदगी है, उसकी अर्निंग ही वहीं से, उसकी लाइवलीहुड ही वहां से चलती है। ऐसे ही अगर हम केटल की बात करें, तो जो गाय भैंसों का काम करते हैं उनके लिए वही जीवन है, क्योंकि उनकी भी लाइवलीहुड वहीं से चलती है। तो हमें इन चीजों को ऐसे नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए जो जिसका काम होता है उसके लिए हर चीज ही एसेंशियल होती है। तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी इतनी प्रोग्रेस कर रही है कि वो हर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज का हमें इंश्योरेंस देती है, ताकि हमारा रिस्क फैक्टर बिल्कुल ही रिड्यूस। Clear? Any doubts still here? Now let's take a break for a minute. Let me have a water. I hope everything is clear. सब कुछ clear है? चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक, खुश हो जाइए, हार्डली 10 मिनट्स में हमारी क्लास खत्म हो जाएगी और मैं ये जल्दी जल्दी करा दूंगी, क्योंकि ये आपका अपना पसंदीदा टॉपिक है जो हम करते आए हैं, पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे टेलीकॉम सर्विसेज, जो कि टेलीकॉम सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती है। इसको बहुत फास्टर, चीपर और बहुत रिलायबल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हमारा माना जाता है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी था हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में और हमारी इकोनॉमिकली हमारी रैपिड करने में, ताकि हमारी सोसाइटी की भी डेवलपमेंट हो सके। पहला आता है इसमें सेलुलर मोबाइल सर्विस। सेलुलर मोबाइल सर्विसेज यानी कि जो हमें वॉइस या नॉन वॉइस मैसेजेस की सर्विसेज देते हैं, पीसीओ सर्विसेज वगैरह यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। अब तो हमारे बहुत सारे ऑपरेटर्स आ गए हैं, जैसे कि वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस, जियो, बहुत सारे और ऑप्शंस भी हमारे यहाँ अवेलेबल हो गए। फिक्स लाइन सर्विसेज, जो कि पहले होते थे लैंडलाइंस होते थे, फिक्स होते थे, जो वॉइस और नॉन वॉइस मैसेजेस हमको प्रोवाइड करते थे, जो हम लॉन्ग डिस्टेंस पर भी इजिली यूज कर सकते हैं। Although the charges incurred for that were slightly high, but जिसको यूज करना होता था वो करता। They are always connected with the fiber optic cables. केबल सर्विसेज, जो हमें केबल की होती थी पहले, हमारे केबल लगते थे, जो आजकल दैट इज कन्वर्टेड टू डेन। तो पहले हमारे केबल्स लगते थे, छत से हमारे कनेक्शंस हुआ करते थे। एक एंटीना वायर यूज टू कम, जो हमारे टीवी में पीछे प्लग इन होती थी। एट दैट टाइम द टीवीज वर लाइक बॉक्सेस वाले टीवी, तो उसमें हम कनेक्ट करते थे ताकि हम इजिली काम अपना कर सके, देख सके चीजें, जिसमें हमारा एंटरटेनमेंट हो सके। इस चीज के लिए हमारा यूज वन वे चलती थी, अब हमारी दे आर बिकमिंग टू वे। वेरी स्मॉल एक्चुअल टर्मिनल सर्विसेज, जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट बेसिस पर चलती थी, कि हम ब्रॉडबैंड डेटा वगैरह जो आजकल चल रहा है, बहुत फ्लेक्सिबल होता था, रिलायबल कम्युनिकेशन होता था, हम इजिली यहाँ से कम्युनिकेट कर सकते। डीटीएच वगैरह जो हमारा आज भी चल रहा है, टाटा स्काई वगैरह, जो हम अपने छत पे इन द फॉर्म ऑफ एंटीना लगा लेते हैं, उसका एक छोटा सा सेटअप बॉक्स होता है, हमारे टीवीज के बिल्कुल सामने रखा जाता है। बट यू नो इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बारिश आंधी तूफान से आजकल जिसके घर में होएगा आप देख लेंगे, बारिशें चल रही हैं तो आजकल आपकी डीटीएच विल नॉट बी वर्किंग इन अ दैट टू गुड मैनर, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ ही रही होगी। कुछ हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स प्रोवाइड करी जाती हैं। पहली होती है हमारी अटल पेंशन योजना,
जो हमारी एज ग्रुप 18 से 40 साल तक के लिए ही प्रोवाइड करी जाती है, जहां पे हम ये इन्वेस्टमेंट में तरीके का काम करते हैं ताकि हम ओल्ड एज पेंशन की फॉर्म में बाद में दे सकें। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये हमारा होता है कोई भी हमारा एक्सीडेंटल या कोई डिसेबिलिटी होती है तो 2 लाख तक का हमारा कवर किया जाता है, या हमारा 12 रुपए पर ईयर भी इसमें हम दे सकते हैं प्रीमियम। ये सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। सेविंग अकाउंट होल्डर जिसके जो है वो इजीली इस चीज को कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने सेविंग अकाउंट में एक पॉइंट पढ़ा था, जो लास्ट वाला पॉइंट था, कि सेविंग अकाउंट होल्डर हमें बहुत ज्यादा फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज के बारे में हम बात। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि रुपए वगैरह एटीएम डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू हम कर सकते हैं। 1 लाख तक का इसमें अमाउंट कवर होता है, 30,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि हमारा एटीएम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का होता है या एक्सीडेंटल और लाइफ कवर का होता है। 1 लाख हमारा एक्सीडेंट का कवर होता है और 30,000 हमारा लाइफ। ये बेसिकली जो बहुत गरीब सेशंस होते हैं, लोअर क्लास वाले सेशंस होते हैं, उनको ही प्रोवाइड करते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, यहाँ पे हमें 2 लाख तक का कवर हो सकता है। अगर हम प्रीमियम पे करना चाहें तो 330 रुपए पर ईयर भी पे कर सकते हैं। ये 18 से 70 साल तक के लोगों के लिए ही वैलिड। With this we have come to an end of the chapter. अगर किसी को कोई भी डाउट, किसी को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू है, प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप अ मैसेज. I will surely revert to the same. Also one more thing. कल छुट्टी है, संडे है, मंडे को हमारी एमसीक्यू क्लास है. प्लीज डोंट फॉरगेट टू कम टू द क्लास. प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स एक्चुअली अ हम्बल रिक्वेस्ट, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ताकि हमें ये चैप्टर दोबारा नहीं करना पड़ेगा अंटिल और अनलेस जब तक हमारा पेपर नहीं. Bugs Bounty, a very important feature organized by Unacademy, in which if you see any inappropriate content or any inappropriate video, you have the opportunity to report for the same. For reporting, you can go to the description below, you can fill the form and you can easily claim your prize. If you will be correct and you will be the first one to report for the same, you can easily claim your prizes. At Unacademy, we can ask any number of doubts and at any moment of time. For this, what we have to do is we have to download the app. If you are an Android user, or you can go to Google Play or Play Store, and if you are an Apple user, you can easily go to App Store for downloading the same. After downloading the video, after downloading the app, the option of Ask a Doubt will appear. Choose the question or select from the gallery. Or if you don't have the question in the gallery, click the picture for the same. Select the question in which you are having a doubt. Crop the point in which particular point you are having a doubt. Select the subject from which the question is related to. The answer will be in front of your eyes. You can get the solution to your answer in both Hindi, English, high quality video. Also, if you want, you can get assistance in your homework also. For that, there is no need to point anyone. There is no need to request anyone. You yourself can easily get the solution to your doubts. हर इतवार यानी कि कल, क्योंकि आपकी छुट्टी है, तो मैं आपको बता दूं, संडे को 1 बजे आपके लिए अनअकैडमी कॉम्बैक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहां पर आप क्लासेस 11th और 12th सीबीएसई के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. Here you will get the time of 1 hour and you have to answer 30 questions. It will be a live test on Android. If all your questions will be correct, you are eligible to win a scholarship worth ₹1 crore. जी हाँ, आप 1 करोड़ की स्कॉलरशिप जीत सकते. After downloading the app, don't forget to use your own code, that is BREJ10, to get the extra discount of 10%. Don't forget to like, share and subscribe the video. Also, don't forget to come on Monday's class for MCQ question, so that all the doubts can be clear. Don't forget to ring this bell so that you can get the notifications of the same. Take care, good day, good night, have a brilliant Sunday, but please also try to repeat the chapter once again so that each and every point will be cleared and you yourself will answer all the questions in MC. Thank you, good night everyone, have a good day.